بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں شیخ، ایک سوال ہے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی جس طرح سے ہمارے ہندوستان میں انڈین سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ میراث کا جو علم ہے مطلب عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور جب ان کو بتانے کے لیے جاتے ہیں ہم کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اور بتاتے ہیں کہ یہ مواقع ہیں سیکھنے کے، سیکھیے علم میراث سیکھیے، تو لوگ کیا ہے اس سے مطلب دور بھاگتے ہیں کہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اب معلوم ہو جائے گا تو پھر سب ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو جی ہاں جی لوگ اس طرح سے یہ ایک بھاگتے ہیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم جاہل ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے، جاہل کا مطلب سبھی لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ جو بات یہ کہتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو جاہل سے میری مراد شریعت کا یہ حکم اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو گویا کہ پھر ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم نے کچھ بھی عمل کر لیا، غلط عمل ہو گیا، تو کل قیامت کے دن ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ یہ جو سوچ بنی ہوئی ہے یہ صرف میراثی کے تعلق سے نہیں ہے، بہت سارے ہمارے بھائی جو کہ داڑھی صاف کرتے ہیں یا کچھ اور بھی جو ہے چیزیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں، شریعت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ کیا ہے ذہنوں میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو یا دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ داڑھی چھوڑے، یا اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، دین کے پورے احکام کی پابندی کرے، یہ صرف اس کی ذمہ داری ہے، دوسرے لوگوں پر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ کیا ہے کیونکہ ہم تو عالم نہیں ہیں اس لیے اگر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو تصور جو ہے نا یہ بہت ہی غلط تصور ہے، اس میں ڈبل گناہ ہوگا، یاد رکھیے، ایک گناہ ہوگا کہ عمل نہ کرنے کا اور دوسرا گناہ ہوگا اس کو نہ سیکھنے کا۔ یہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے جو دین کا بنیادی علم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا، علم سے مراد یہاں پر یہی شریعت کی یہ بنیادی احکام ہے، انہی کو سیکھنا جو ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہے۔ تو پہلے تو یہ کوتاہی کی کہ سیکھا نہیں تو اس کا الگ سے عذاب ہوگا، دوسری کوتاہی کیا ہوئی ہے کہ غلط عمل کیا، نہیں سیکھا اور اسی وجہ سے عمل بھی نہیں کیا، تو عمل نہ کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور نہ سیکھنے کا بھی گناہ ہوگا، ڈبل گناہ ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے میراث کی، بقیہ اس کی ڈیٹیلز بعض ہو سکتی ہیں، تفصیلات ہو سکتی ہیں جو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں، جیسے بنیادی باتوں میں سے یہ ہے کہ یہاں لڑکے اور لڑکی میں تقسیم کے وقت فرق ہوتا ہے، یا میل اور فیمیل میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ چلتا ہے، یعنی میل کو فیمیل کے مقابلے میں بعض جو ہے حالات میں ڈبل ملتا ہے، تو یہ تو ہر کوئی جو ہے ہر کسی کو جاننا چاہیے، ضروری ہے یہ جاننا جو ہے۔ اور اسی طریقے سے میراث میں ایک بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، اور جو ہے اسی طرح سے باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، اور پوتا اور پوتی کا کیا حق ہے، یہ سب جو چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کا تو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور کیسے اسے تقسیم کیا جائے گا کیونکہ یہ سب سے تعلق رکھتی ہے چیز، اسی لیے ہر ایک کا جاننا یہ ضروری ہے۔ تو یہ صرف کل قیامت کے دن ہم اس وجہ سے نہیں بچ جائیں گے کہ ہم کو علم نہیں تھا، بلکہ ہم کو ڈبل سزا بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے سیکھا بھی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ باپ نے جو یہ کر رکھا ہے کہ اس کے نام سے کسی مجبوری کی وجہ سے نام سے خرید لیا، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں یہاں درس میں، لیکن ایسا بعض مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی جس کی وجہ سے لوگ کر دیتے ہیں ایسا، تو اس وقت یہ چیز واضح ہونا چاہیے باقاعدہ سارے بچوں کے درمیان اور پوری فیملی کے درمیان، وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں جو اس طرح کی تقسیم میں ترکے وغیرہ کی تقسیم میں آتے ہیں، ان سب کے درمیان یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ
मालिक नहीं है। बेटे के नाम से जरूर है ये जायदाद, लेकिन ये बेटा मालिक नहीं है, मालिक मैं हूँ। मेरे मरने के बाद ये भी मीरास में ही शुमार होगा और बाकायदा नए सिरे से सारी चीजों की तकसीम अमल में आएगी। अगर किसी मजबूरी से उसके लिए मजबूरी है, वो बीवी के नाम से खरीदना चाहता है या बेटे के नाम से खरीदना चाहता है या बेटी के नाम से खरीदना चाहता है, तो उस वक्त इस चीज की वजाहत मरने से पहले होना बहुत जरूरी है, ताकि इसी को बहाना बना करके जिसके नाम से वो है वो उस पर कब्जा न कर ले, क्योंकि उसके लिए सारे जो है ये दरवाजे खुले हुए हैं कब्जा करने के। और ऐसा किया भी है लोगों ने, मुझे बाकायदा कॉल्स आए हैं ऐसे कि जो है मेरे भाई के नाम से जो है बाप ने जायदाद खरीदी थी अपनी जिंदगी में, वो बड़ा भाई उसके छोटे भाई ने फोन करके कहा कि अब वो भाई जो है कहता वो मेरा माल है, वो तरीके में शामिल नहीं है क्योंकि वो मेरे नाम से। तो बाद में ऐसा नियतें बदल जाती हैं। मैंने आपसे यही कहा दर्स में कि नियतें आजकल बदल जाती हैं। ईमान जो है लोगों का उतना मजबूत नहीं है, आखिरत पर ईमान उतना मजबूत नहीं है। इसलिए अगर किसी मजबूरी की वजह से जिंदगी में ऐसा करना भी पड़ रहा है तो इसकी वजाहत हो जाना बहुत जरूरी है मेरे लिहाज से, और ऐसे लोगों के दरमियान इसकी वजाहत हो कि फिर वो आदमी उस पर कब्जा ना कर सके मरने के बाद, और बाकायदा उसे तरके में लाया जाए और तरके के लिहाज से उसको तकसीम किया जाए। अब ये चूंकि बीवियों के नाम से हो गया तो ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। यहाँ ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए थी ना कि ये असल में उन बीवियों की मिल्कियत नहीं, ताकि वो बीवियाँ उसमें और कोई अपनी तरफ से तसर्रुफ ना कर सकें या खुद जो है वो डील ना कर सके किसी तरह की। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे अब आपने कहा कि दूसरी बीवी ने बेटों के नाम से कर दिया, तो अब बेटियों को नहीं दिया, बेटों के नाम से कर दिया। तो हालांकि ये बेटे जो है उसके दूसरे शौहर से, इसके इस शौहर से हैं भी नहीं, जैसे आपने मसला पूछा है उसके लिहाज से। तो अगर ये बाप के शौहर के नाम से ही प्रॉपर्टी होती है तो ये बेवा औरत जिससे उसने दूसरी शादी की थी, इस बेवा औरत के जो पहले वाले शौहर से औलाद है ना, उनको यहाँ हिस्सा नहीं मिलता। उसको पहले वाले जो शौहर के इंतकाल से वो जो उसकी जो प्रॉपर्टी से उनका हिस्सा था उसी से उनका हिस्सा होगा। फिर ये जो है इसको जो अपने इस शौहर से हिस्सा मिल सकता है, जो उसका अपना होता है बीवी का हिस्सा 1/8 जो है, तो उसमें से फिर वो अपनी औलाद, उसकी औलाद को वो हिस्सा जा सकता था। लेकिन ये दूसरे शौहर की प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी चूंकि इस बीवी के नाम से थी, बेवा बीवी के नाम से, तो इसने अपनी उस औलाद को जो कि उसके पहले शौहर से थी उसके नाम से दे दिया। तो देखिए अभी किस तरह से एक प्रॉपर्टी जो एक बाप की प्रॉपर्टी है उसके बच्चों को जो जानी चाहिए थी वो दूसरों को चली गई, ये प्रॉपर्टी उसके अपने बच्चों को कि उससे महरूमी हो गई। तो ये सब चीजें पैदा होती है, इसीलिए हम मना करते हैं इस बात को। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि जिंदगी में किसी के नाम से प्रॉपर्टी ले लेने से ये परेशानियां आती हैं। अगर कोई वाकई बड़ी मजबूरी हो तो खरीदते हुए मैंने कहा कि ये वजाहत करना जरूरी है कि उनकी मिल्कियत नहीं है, सिर्फ हमने किसी मजबूरी की वजह से इनके नाम से प्रॉपर्टी। लेकिन आप जो बता रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि शायद दोनों बीवियों के नाम से उन्होंने लिया है और बगैर किसी मजबूरी के भी लिया है। तो लोग चूंकि जानते नहीं है मसाइल को, इसलिए भी लोग इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। तो उनको असल में बीवियों के नाम से ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए थी। पहले गलती वही हो चुकी है, अब जो गलतियां हो चुकी होती हैं उनको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जैसे भी होता, जैसे भी मसला बन सकता हो उसके लिहाज से वहां बैठ करके मसले को उन बेटियों को चाहिए कि सुलझा लें, वो बेहतर है। क्योंकि अब गलतियां जो हो चुकी हैं, जो बीवी के नाम से कर दिया उन्होंने, जिस बेवा ने शादी की उसके नाम से कर दिया, और उस अपने उन बेटों के नाम से वो जायदाद कर दी जो बेटा उसके पहले शौहर से थे। तो बहरहाल ये गलती अगर हो चुकी है तो अब उसको तो सुधारा नहीं जा सकता, वो मसला अपनी जगह पर रह जाएगा। वो मुश्किल है, क्योंकि एक मर्तबा किसी के हाथ में माल पहुंच जाने के बाद उसके हाथ से माल निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें फिर बहुत झगड़े और बड़े इख्तिलाफात हो जाते हैं। इसीलिए इससे बचना चाहिए। मैं हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि किसी के नाम से जिंदगी में प्रॉपर्टी करने से बचना चाहिए, चाहे वो बीवी हो चाहे जो है बच्चे हो, इससे बचना चाहिए। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो बचना चाहिए। जी, साल में आपके चचाओं का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर आपके वालिद की अपनी औलाद है, माँ बाप हैं या औलाद में यानी बाप है और जो है औलाद में अगर बेटा है, तब तो इन लोगों को नहीं बनता है कोई हिस्सा। असल बेटा जब रहता है किसी भी शख्स का अपना बेटा होता है ना, तो बेटा ये मिरास के पूरे निज़ाम में
जो जी तरीके का निज़ाम है इस्लामी निज़ाम, उसमें बेटा बहुत पावरफुल माना जाता है। तो जब जी बेटा होता है तो फिर किसी को हिस्सा नहीं मिलता, सिवाय जो है मरने वाला अगर जो है बाप है, या कहिए मरने वाला जो है आदमी है, तो उसकी बीवी अगर जिंदा है तो बीवी पा सकती है बेटा होने के बावजूद भी। अगर उसके माँ बाप जिंदा है तो उसके माँ बाप पा सकते हैं। नहीं जी तो माँ बाप जिंदा नहीं है या बीवी भी जिंदा नहीं है, तो सिर्फ जो बेटा है, अगर बेटा के साथ बेटी भी है तो इन्हीं का हिस्सा बनता है, दूसरों का हिस्सा नहीं बनता उस वक्त। जी लेकिन अगर बेटा नहीं है तो फिर जो है ये मसला, बेटियों का हिस्सा चूंकि ऐसा रखा है अल्लाह ताला ने कि बेटियां अगर सिर्फ हैं तो ये पूरी जायदाद की मालिक नहीं होती है। बेटा अगर अकेला भी है, याद रखिए, तो जी बेटा पूरी जायदाद का मालिक बन जाता है। लेकिन बेटी का ऐसा नहीं है। बेटी का क्या है, बेटी को आधी जायदाद ही मिलती है अगर वो मरने वाले की सिर्फ एक बेटी है, आधा हिस्सा ही उसका हुआ, मुतय्यन आधा हिस्सा है। अब जी उसके बाद आधा किसको मिलेगा, एक तरतीब रखी गई है। अब बेटा जो है नहीं है, बाप भी नहीं है, तो अब ये नंबर आता है भाई का। सगा भाई हो तो सगा भाई, सौतेला भाई है तो सौते, मतलब वो जो है एक तरतीब है। जी फिर जी भाई भी अगर नहीं है, भाई का इंतकाल हो चुका है, तो भाई का बेटा हो सकता है, तो भाई के बेटे को भी हिस्सा मिल सकता है। ये तरतीब होती है। मरने वाले का बेटा सिरे से है ही नहीं, जब बेटा नहीं है तो पोते का मसला भी नहीं आता, वरना बेटे का इंतकाल हो गया इसलिए बेटा नहीं है, लेकिन उसका बेटा है, पोता है, तो फिर पोता भी पावरफुल होता है, वो हिस्सा ले लेगा, और जो है भाइयों वगैरह को हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन ये शक्ल के मरने वाले की सिर्फ बेटियां हैं, बेटा है ही नहीं सिरे से, बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका है, तो ऐसी सूरत में भाई आते हैं अंदर, विरासत में उनको हिस्सा मिलता है। अगर जी हिस्सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही है, लेकिन मिलता है बहरहाल भाई बहन। जी।